Hi vocab champs, hope you're enjoying the lessons and here we go again. Welcome back to the word meaning series and this is letter I part 3, another power pack of I words. Think smart words, sharper meanings, instant vocabulary, glow up. So grab your notebooks, turn on your brain and let's jump straight into the action. The first is inopportune and the meaning is occurring at an inconvenient or unsuitable time. This word basically means happening at the wrong time. ठीक है, कोई चीज जो कि गलत टाइम पे इनकन्वीनियंट टाइम पे हो रही है, ठीक है, अनसूटेबल टाइम पे हो रही है. दिस वर्ड फोकसेस मोर ऑन टाइमिंग रादर देन द इंटेंशन. क्या चीज हो रही है उस पर कम फोकस है रादर देन कि किस टाइम पे वो चीज हो रही है. ठीक है, डेली लाइफ में एक फोन कॉल ड्यूरिंग एन एग्जाम इज inopportune. Example is inopportune remark ruined the mood. Now we have inordinate and the meaning is excessive or unusually large beyond reasonable limits. Inordinate basically describes something that is excessively or beyond normal limits कि जो normal expected and accepted limit है उसके something beyond, ठीक है, उससे भी बढ़कर. This often refers to desires, delays or behavior and this word implies lack of moderation, lack of control. Everyday life में inordinate pride can cause problems. जो ego या फिर pride जो कि expected way से बहुत ज़्यादा हो, that may cause problems. ठीक है, for example she showed an inordinate interest in gossip. थोड़ा बहुत हर कोई बंदा करता है but जब कोई excess में करने लग जाए so that is considered inordinate. Now we have inquisitive and the meaning is this describes someone who is eager to ask questions and learn. Inquisitive basically means curious and eager to know or learn. कोई ऐसा person जो कि बहुत ज़्यादा उसकी दिलचस्पी हो in asking questions and getting to know more things, ठीक है, and gaining knowledge. It usually has a positive meaning when linked to learning. However, it can sound negative if curiosity becomes intrusive. क्या आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जब लग जाओ ना, ये चीज़ कैसे है, अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है, ये अच्छा है तो ये ऐसा क्यों है, तो that becomes very irritating and annoying. In daily life, children are naturally inquisitive. ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, toddlers होते हैं, they would naturally ask you questions because they are curious about various things. आइसक्रीम है, ये क्या है, आइसक्रीम के ऊपर क्या है, something like that. Example, the inquisitive student asked many questions. Now we have insatiate and the meaning is impossible to satisfy or fulfill completely. Insatiate basically refers to something जो कि can completely कभी भी satisfy नहीं होएगा या फिर भरा हुआ नहीं होएगा. ठीक है, it often describes hunger, desire और ambition जो मतलब कभी पूरा हो ही नहीं रहा. ठीक है, आप एक गोल सेट करते हो, उतने पे आते हो, आपका गोल ऊपर हो जाता है, उतने पे आते हो और ऊपर हो जाता है, तो इट इज insatiable. ठीक है, कभी पूरा नहीं हो रहा. This word suggests endless craving. In daily life, greed can be insatiate. Example, he had an insatiate desire for success. Now we have inscrutable and the meaning is this describes something difficult to understand or interpret. Inscrutable basically describes ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा difficult है and समझने के लिए impossible हो. ठीक है, this word is often used for expressions, motives और behaviors कि आपको समझ में ना आए कि अगर कोई बंदा ऐसा behave कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका motive क्या है, ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है. कोई चीज़ मतलब जो आपको समझ में ना आए, आप चाहे उसको कितना scrutiny से देख लो. This word suggests mystery or secrecy. Daily life में एक silent person may seem inscrutable क्योंकि उसकी silence क्या छुपा रही है आपको नहीं पता. Example, her expression remained inscrutable. Now we have insipid and the meaning is lacking excitement, flavor or interest. Insipid basically means something which is dull, tasteless या फिर कोई excitement नहीं है, interest नहीं है किसी भी चीज़ में. ठीक है, it can describe food, conversation or ideas. The word suggests blandness, कोई चीज़ जिसमें कोई taste ही नहीं है. ठीक है, daily life में boring small talk जो है आपको insipid लगेगी कि what's the sense of doing it. ठीक है, कोई excitement नहीं है, कोई interest नहीं है उस चीज़ में. Example, the movie was insipid and predictable. Now we have insolent and the meaning is this describes rude or disrespectful behavior towards authority. Insolent basically describes arrogant behavior जो आप towards any kind of authority दिखाओ. ठीक है, it involves talking back or showing contempt या rudely बात करो. ठीक है, उल्टे जवाब दो.
दिस वर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन इम्पर्टिनेंट. डेली लाइफ में ऐसे रिप्लाईज जो होते हैं एल्डर्स को ऑफेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डेलिबरेटली डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो. चाहने को आप चुप भी रह सकते हो, ठीक है, बोलने को ना भी बोलो तो भी चलेगा, बट आप जानबूझ के बोल रहे हो एंड जानबूझ के उल्टा बोल रहे हो. एग्जाम्पल, हिज इंसोलेंट टोन angered the teacher. Now we have insolvency and the meaning is the inability to pay debts when they are due. इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप अपने जो डेट है, ठीक है, आप पे जो उधार है वो आप चुका नहीं पा रहे हो जब आपको वो चुकाने का टाइम आ गया है, ठीक है. फाइनेंशियल एंड लीगल टर्म है. ये जो है डिस्क्राइब करता है एक स्टेट नॉट एन एक्शन, कि आपकी हालात ऐसे कि आप नहीं कर पा रहे, ठीक है. डेली लाइफ में बिजनेसेस मे फेस इंसॉल्वेंसी ड्यू टू लॉसेस. एग्जाम्पल, द कंपनी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी, कि हम पे जिन जिन लोगों का उधार है हम उनको वापस नहीं चुका सकते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया. Now we have insubordinate and the meaning is describes defiance of authority or refusal to obey orders. Insubordinate basically describes disobedience, ठीक है, towards authority, कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तो ऐसे ही हैं, तुम बोलते रहो, तुम्हें जो बोलना है, ठीक है, उनके रूल्स ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे. दिस वर्ड इज ऑफन यूज्ड इन वर्क प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस. डेली लाइफ में कोई एम्प्लॉय है जो कि अपने सुपरवाइजर का या फिर अपने मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर रहा है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड insubordinate. Example, his insubordinate behavior led to suspension. Now we have insubstantial and the meaning is weak, flimsy or lacking solid form or importance. Insubstantial का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि सॉलिड नहीं है, ठीक है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है. आर्ग्यूमेंट्स डिस्क्राइब हो सकते हैं इससे, प्रोमिसेस या फिर ऑब्जेक्ट्स जो कि दिखने के हैं बस, ठीक है, उनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है. दिस वर्ड सजेस्ट वीकनेस और एम्प्टीनेस एंड इन डेली लाइफ वेग एक्सक्यूजेस आर इनसब्सटेंशियल. कोई स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, ठीक है, कोई बैक नहीं है उस चीज की. एग्जाम्पल, द एविडेंस वॉज इनसब्सटेंशियल. Now we have insuperable and the meaning is impossible to overcome of defeat. Insuperable basically means कि कोई चीज जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते या फिर उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है. दिस इज मेनली यूज्ड फॉर ऑब्स्टिकल्स या फिर डिफिकल्टीज एंड दिस वर्ड्स आर जस्ट फाइनलिटी, कि आप कर ही नहीं सकते, अब हो गया, ठीक है. डेली लाइफ में डर किसी चीज का मे फील इंसुपरेबल, कि आप उस चीज को क्रॉस नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते अगर आपको किसी चीज का डर है तो, ठीक है. इट इम्प्लाइज एक्सट्रीम चैलेंज. एग्जाम्पल, दे फेस्ड इंसुपरेबल ऑड्स. Now we have insurgent and the meaning is this refers to a person rebelling against authority or government. Insurgent basically ऐसे person को describe करता है, refer करता है जो कि authority के या फिर government के against rebel कर रहा है, ठीक है. This word is often used in political or military context and it is organized resistance, ठीक है, कि आप organized होके like अगर आप rebel कर रहे हो, ठीक है, कोई movement चला रहे हो, revolutionize कर रहे हो, तो obviously that is organized. And in daily life the term appears in news report. Example, the army clashed with insurgents. Now we have intercession and the meaning is intervening to help resolve a conflict or dispute. Intercession का मतलब होता है जब आप किसी के बिहाफ पे आके, ठीक है, कोई डिस्प्यूट को या फिर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश करो, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स प्लीडिंग और मेडिएशन, कि आप बीच का बंदा बन के इधर की बात सुन रहे हो, उधर की बात सुन रहे हो एंड दोनों में सुलह करवा रहे हो, ठीक है. दिस वर्ड इज कॉमन इन रिलीजियस और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. डेली लाइफ में एक दोस्त आपके बिहाफ पे कहीं पे कुछ बोल सकता है, ठीक है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है, एंड अगर आप बात करने जाते हो ना तो बात संभलने की जगह और बिगड़ ही जाती है. So your friend would be like कि भाई तू चुप रह, तेरे बिहाफ पे मैं बात करता हूँ, ठीक है, बात सुलझा दूंगा. So he is in intercession. Example, he was released after her intercession. Now we have interdict and the meaning is prohibit or forbid something. Interdict का मतलब होता है जब कोई अथॉरिटी किसी चीज पे रोक लगा दे, ठीक है, प्रोहिबिट कर दे, उसको फॉरबिड कर दे कि आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते. इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब और नाउन. ये वर्ड जो है फॉर्मल है, लीगल है. डेली लाइफ में गवर्नमेंट जो है इलीगल एक्टिविटीज को इंटरडिक्ट कर दे, ठीक है, उसको फॉरबिड कर दे कि आप ये चीजें नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, द कोर्ट इंटरडिक्ट्स अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन.
Now we have interim, and the meaning is this refers to a temporary period between two events. इंटरम का मतलब होता है कि टेम्परेरी या फिर शॉर्ट टाइम के पीरियड्स या फिर ब्रेक्स बिटवीन टू काइंड ऑफ इवेंट्स या फिर अरेंजमेंट्स, ठीक है. दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर रोल्स और रिपोर्ट्स. ये वर्ड सजेस्ट करता है दो स्टेजेस के बीच वाला टाइम, ठीक है, कि इवेंट ए है, इवेंट बी है, एंड उसके बीच का जो टाइम है दैट वुड बी इंटरम. In daily life, interim manager fills a gap. Example, she was appointed as interim director. Now we have interlude, and this means a short pause between two main events. Interlude का मतलब होता है कि दो मेन इवेंट्स या फिर दो एक्टिविटीज में एक शॉर्ट पॉज कर देना, एक ब्रेक ला देना कि हाँ यार अभी ये चीज़ जो है इतने तक है, ठीक है, अब इसके बाद ये होएगा, ठीक है. जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, है ना, तो उनके लेग्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 Feb से 31 March तक जो है एक लेग है, एंड देन अनदर वुड बी फ्रॉम 1 August टू 30 September. तो जो उसका बीच का पॉज है ना दैट इज इंटरल्यूड, ठीक है. दिस वर्ड सजेस्ट समथिंग ब्रीफ एंड ट्रांजिशनल कि इस चीज से आप ट्रांजिट करके आप इस चीज पे आ सको, ठीक है. डेली लाइफ में अ वेकेशन कैन बी इंटरल्यूड बिटवीन बिजी फेसेस. एग्जाम्पल इज द सॉन्ग प्रोवाइडेड अ काम इंटरल्यूड इन द कॉन्सर्ट. Now we have interminable, and the meaning is seeming endless and tiresome. Interminable का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आपको एंडलेस लगे, ऐसा लगे कि वो होती जा रही है, होते जा रही है, चलती जा रही है, कभी खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है, एंड इट गोज ऑन फॉर टू लॉन्ग, ठीक है. दिस वर्ड इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस बोर्डम और एग्जॉशन, एंड दिस वर्ड एग्जैजरेट्स ड्यूरेशन. डेली लाइफ में लॉन्ग लेक्चर्स जो होते हैं हमें इंटरमिनेबल लगता है कि मैम जो है बोले जा रही है, लेक्चर चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है. एग्जाम्पल, द मीटिंग फेल्ट इंटरमिनेबल. Now we have intermittent, and the meaning is occurring irregularly with breaks in between. Intermittent का मतलब होता है कि कोई चीज जो कि इरेग्युलर वे में आ रही है, ठीक है, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स पॉजेस लेके आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं आ रही. इट रेफर्स टू एक्शंस और इवेंट्स दैट स्टार्ट एंड स्टॉप. दिस वर्ड इज कॉमन इन टेक्निकल एंड एवरीडे यूज. डेली लाइफ में इंटरमिटेंट रेन कम्स एंड गोज, आती है जाती है. एग्जाम्पल, शी एक्सपीरियंस्ड इंटरमिटेंट पेन. जो दर्द होता है, कभी कभी आपको भी होता होगा कि आता जाता दर्द होता है, कभी हो रहा है फिर ठीक हो जाता है, फिर वापस शुरू हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है. Now we have interpolate, and the meaning is to insert additional materials into a text or speech. Interpolate का मतलब होता है कि एक existing text में या फिर conversation में अपनी और भी चीजें इंसर्ट करना और भी कंटेंट इंसर्ट करना, ठीक है. इट ऑफन रेफर्स टू एडिंग वर्ड्स, एक्सप्लेनेशंस और डेटा. दिस वर्ड इज यूज्ड इन एकेडमिक और टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट. डेली लाइफ में एक स्पीकर जो है कमेंट इंटरपोलेट कर दे, ठीक है. एग्जाम्पल, द एडिटर इंटरपोलेटेड अ क्लैरिफिकेशन इनटू द आर्टिकल. Now we have interpose, and this means to intervene between parties to stop conflict. Interpose का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में आ जाना, ठीक है, intervene कर देना to stop them, ठीक है. It suggests stepping in to prevent harm or conflict. This word is formal but expressive. Daily life में एक teacher जो है हो सकता है दो बच्चों के argument के बीच में आ जाए, and she would like separate them and be like कि हाँ भाई चलो बस, ठीक है. हम reality TV shows देखते हैं, वहां पे अगर लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो दो लड़के आपस में लड़ने के लिए ऐसे लाइक आते हैं पास में, एंड बाकी सारे जो होते हैं उनको रोक के पीछे कर रहे होते हैं, तो जो वो रोक रहे होते हैं दैट इज इंटरपोज, ठीक है. एग्जाम्पल, शी इंटरपोज हरसेल्फ बिटवीन द फाइटर्स. नाउ वी हैव इंटरस्पर्स, एंड दिस मीन्स टू स्कैटर थिंग्स अमंग अदर आइटम्स. इंटरस्पर्स का मतलब होता है कि एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप जो है जाके और भी चीजें वहां पे ऐसे रखो, ठीक है. कोई ग्रुप नहीं किया कि हाँ कोई कैटेगरी वाइज नहीं, बस वहां पे ऐसी अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंटरवल्स पे रख दिया, ठीक है. दिस वर्ड इज ऑफन यूज्ड फॉर आइडियाज, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स. डेली लाइफ में जोक्स जो कि कहीं पे भी कभी भी बोल दिए जाते हैं ना, दैट कीप्स द स्पीच इंगेजिंग. एग्जाम्पल, द लेक्चर वॉज इंटरस्पियर्ड विद एग्जाम्पल्स. Now we have intimidate, and this means to frighten or threaten someone into submission. Intimidate का मतलब होता है कि किसी को डराना, ठीक है, उनको intimidate करना, उनको frighten करना, threaten करना into doing something, ठीक है, कि या तो तुम confess करो, ठीक है, submit करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करो, ठीक है. It involves fear as a tool of control. ये वर्ड जो है पावर इम्बैलेंस को सजेस्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक के पास अपर हैंड है जो दूसरे बंदे को डरा रहा है, ठीक है. एग्जाम्पल, ही ट्राई टू इंटिमिडेट हर इनटू साइलेंस.
Now we have intractable, and this describes someone difficult to control or persuade. Intractable basically describes ऐसी चीज़ या फिर ऐसा person जिसको आप easily manage, control या फिर solve नहीं कर सकते, ठीक है? It is often used for problems, conflicts और behavior. ये word जो है suggest करता है stubborn resistance. Example, the conflict proved intractable, कि मतलब आप उस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आप उस चीज़ को solve कर ही नहीं पा रहे. Now we have intransitive, and this refers to a verb that does not require an object. Intransitive ऐसी verbs को refer करता है जिसके लिए आपको when using in a sentence आपको object नहीं चाहिए, ठीक है? ये grammatical term है and the action stops with the subject. कि जो subject आपने use किया and जो verb use करी, that's it. कोई उसके ऊपर आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है? For example, he sleeps uses an intransitive verb. वो सो रहा है, ठीक है? There is no object. He है, subject है, sleeps है, verb है, खत्म, ठीक है? There is no kind of object. If we say he sleeps on the sofa, then the sofa becomes the object and it is no longer an intransitive verb, ठीक है? So what is intransitive? Something which only has subject and the verb, nothing else, no object. Now we have intrepid, and this means fearless bravery in dangerous situations. Intrepid basically describes someone जो कि बहुत fearless है and brave है and मुश्किल situations में, dangerous situations में बहुत bravery के साथ उनको face on करता है, ठीक है? It is often used admiringly. This word suggests courage in danger. In daily life, explorers are often intrepid क्योंकि वो किस situation में जाने वाले उनको खुद को भी नहीं पता होता, ठीक है? But they are ready to face them. Example, the intrepid reporter entered the war zone. Now we have intricate, and this means very detailed, complex और carefully designed. Intricate का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा detailed है, ठीक है? Complex है, complicated है, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को बनाया गया है, ठीक है? It often refers to design, plans or problems. ये word suggest करता है careful construction. Daily life में handmade patterns जो होते हैं बहुत इंट्रिकेट होते हैं, ठीक है? अगर आपने कोई भी हैंडमेड हैंडलूम देखा होगा ना, तो उस पर जो काम होएगा ना वो बहुत बारीकी का होता है, ठीक है? एंड बहुत ध्यान से देखने वाला होता है. एग्जाम्पल, द वॉच हैड एन इंट्रिकेट डिजाइन. Now we have intrigue, and this means secret planning or mysterious fascination. Intrigue का मतलब होता है कि जब आप किसी इंसान में ना किसी टाइप का इंटरेस्ट या फिर क्यूरियोसिटी जगाओ, ठीक है, फॉर समथिंग, ठीक है? It can be a secret plan or a plot. This word has both neutral and negative uses. It often suggests mystery. Daily life में thrill में intrigue viewers, ठीक है? कोई अगर हॉरर मूवी है या फिर अगर कोई साइकोलॉजिकल मूवी है तो उसका जो थ्रिल है ना वो लोगों को इंट्रीग करेगा, इंटरेस्ट करेगा. एग्जाम्पल, द स्टोरी कंटिन्यूज टू इंट्रीग रीडर्स. नाउ वी हैव इंट्रूड, एंड दिस मीन्स टू एंटर विदाउट इन्विटेशन और परमिशन. इंट्रूड का मतलब होता है जब आप कहीं पे विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन एंटर करो या फिर इंटरफेयर करो. इट्स अ जस्ट इन्वेजन ऑफ स्पेस एंड प्राइवेसी. दिस वर्ड कैरीज अ नेगेटिव टोन, ठीक है? डेली लाइफ में अनवांटेड क्वेश्चंस कैन इंट्रूड ऑन प्राइवेसी. एग्जाम्पल, ही डिड नॉट वांट टू इंट्रूड ऑन देयर कॉन्वर्सेशन. नाउ वी हैव इनंडेशन, एंड दिस मीन्स फ्लडिंग और ओवरवेलमिंग इन ग्रेट क्वांटिटी. इनंडेशन का मतलब होता है कोई ऐसा जगह जो कि फ्लड हो रही है, ठीक है, वहाँ पे, एंड बहुत लार्ज अमाउंट में ओवरवेलमिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है? इट कैन बी यूज्ड लिटरली फॉर वाटर और फिगरेटिवली फॉर इंफॉर्मेशन. द वर्ड सजेस्ट एक्सेस, कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इट कैन बी पानी, ठीक है, एंड इट कैन बी इंफॉर्मेशन और आइडियाज. एग्जाम्पल, द विलेज सफर्ड सिवियर इनंडेशन. एंड डेली लाइफ में ईमेल कैन फील लाइक एन इनंडेशन. आप अपना जीमेल अकाउंट खोलो एंड देयर आर लाइक पिंग्स ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस एंड देयर इज लाइक एन एक्सेस ऑफ इट. Now we have invigorate, and this means to energize or give new strength and vitality. Invigorate का मतलब होता है कि किसी चीज में एक फ्रेशनेस देना, एनर्जी देना, स्ट्रेंथ देना, ठीक है? It suggests renewal or stimulation. This word often refers to mind or body. Daily life में exercises can invigorate people. It can freshen people up, ठीक है? Example, a morning walk can invigorate the body. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website
www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.